يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سورہ آل عمران آیت 135 کی تلاوت کی گئی ہے. دراصل اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے. یہاں وہ سامنے ہے. اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے جن آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی اور متقین کی کچھ صفات بھی بتائی. اہل ایمان کی اور متقیوں کی انہی صفاتوں میں سے مزید یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور صفت کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا اہل ایمان اور متقی وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا وہ خود پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار طلب کرتے ہیں، توبہ اور مغفرت چاہتے ہیں. اور اللہ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ کوئی ہے جو بندوں کے گناہوں کو اللہ کے علاوہ معاف کر سکے؟ کوئی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے. جیسے ہی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، غلطی کے سرزد ہونے پر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں توبہ و استغفار کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بلکہ یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا ہماری تمام کی تمام عبادتیں ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اللہ کے حضور استغفار پر ابھارتی ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت پر ابھارتی ہیں. لیکن کچھ خاص کلمات ہیں جو استغفار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. رکوع سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، حمد ساری کی ساری تیرے ہی لیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرمانا، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمانا. ویسے ہی حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فرا من الزحف. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ استغفار کرتے ہوئے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ و استغفار کرے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں غفر لہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کلمات کے عوض اس بندے کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. کتنے گناہوں کی مغفرت
آپ अलैहिस्सलाम कहते हैं व इन कान फर्र मिन ज़हफ़, अगरचे समुंदर के झाग जितने ही उस इंसान के गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस एक कलमे की इन कलमात की वजह से जो बंदा उससे इस्तिग़फ़ार करे उस बंदे की मग़फ़िरत कर दिया करता है। वैसे आप देखें शरीयत इस्लामिया में इस्तिग़फ़ार की बड़ी फ़ज़ीलतें आई हुई हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, जो बंदा अपने आप पर जुल्म करे या कोई गुनाह का काम करे फिर वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इस्तिग़फ़ार करे तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हद दर्जे बख्शने वाला, अपने बंदों पर रहम करने वाला पाएगा। और इसी तरह हदीस क़ुदसी में है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा या इबादी इन्नकुम तुख़्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन फ़स्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि ए मेरे बंदो, तुम दिन रात गलतियाँ करते रहते हो, दिन रात मेरी नाफरमानी करते रहते हो। और अल्लाह ने कहा व अना अग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन, तुम्हारा मामला यह है कि तुम गलती करते हो और अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे गलतियों को मुआफ़ करता रहता है। और आगे अल्लाह ने कहा फ़स्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, बस तुम हर गलती पर मुझसे तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, हर गलती पर मुझसे माफ़ी तलाफ़ी करो, मैं क्या करूँगा, अग़फ़िर लकुम, तुम्हारी जैसी तैसी गलती क्यों ना हो मैं तुम्हारी उस गलती को मुआफ़ कर दूँगा, जैसी गलती क्यों ना हो। कभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस्तिग़फ़ार ये इस जहाँ में भी और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आज़ाब से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ने कहा वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुदूर उनके तौबा करने की वजह से अल्लाह उन्हें कभी अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। अगर हम इस दुनिया में दुनियावी एतबार से अज़ाबात से ख़ुद को महफूज रखना चाहते हैं तो उसका इलाज क्या है, हम अल्लाह के हुदूर इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार करते रहें, अज़ाबात से तो महफूज हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी जानिब से कई नेमतों से हम जैसे हक़ीर इंसानों को नवाज देगा। जैसा कि अल्लाह ने कहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम रब से इस्तग़फ़ार करो। क्यों? इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला गफ़्फ़ार है, सिर्फ माफ़ करने वाला नहीं बल्कि हद दर्जे माफ़ करने वाला है। गफ़्फ़ार ये मुबालगा का सीगा है जिसमें ठाटे मारने वाला मामला, ये माना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें रखा हुआ है। तुम रब से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हद दर्जे तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। अल्लाह ने कहा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, अब सिर्फ माफ़ नहीं करेगा बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत देखो, वो तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की वजह से आसमान से तुम पर बारिश नाजिल करेगा। व युमदिदुकुम बिअम्वाल व बनीन, अल्लाह तुम्हारे मालों में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारी औलाद में इजाफ़ा करेगा। व यजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे लिए बागात बना देगा। व यजअल लकुम अनहारा, बागात भी कैसे, सूखे वाले नहीं बल्कि उन बागों के दरमियान से नहरें जारी कर देगा। बस शर्त क्या है, अल्लाह से अपने गुनाहों पर, जो गुनाह हमने किए हैं, जो नाफरमानी हमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हुई है, अल्लाह की उन नाफरमानियों पर बस इस्तग़फ़ार कर लें, अल्लाह हमें अज़ाब से महफूज कर देगा और दुनिया की बेशुमार नेमतों से, दुनिया की बेशुमार रहमतों से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें नवाज देगा। अब एक सवाल है कि इस्तग़फ़ार आदमी करे तो कब करे? इस्तग़फ़ार दिन रात जब इंसान को मौका मिले उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुदूर उसे करना चाहिए। हर नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरते, क्या कहते? अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नेक अमल के बाद
تاکہ نیک عمل میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اس کے بالمقابل جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد کس قدر شدت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دن رات جب کبھی آدمی کو موقع مل جائے آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، لیکن استغفار کا بہترین وقت سحر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والمستغفرین بالاسحار، ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، تو ہمیں ان کم لوگوں میں خود کا شمار کرنے کی ضرورت ہے۔ سحر کے وقت رمضان کا موقع ہو یا غیر رمضان کا موقع ہو، ہم اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خاصتاً سحر کے وقت رویا کریں، گڑ گڑایا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو عظیم مغفرتوں اور رحمتوں سے نواز دیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے یوسف پر زیادتی کی، ہم نے آپ پر زیادتی کی، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اس وقت بھی استغفار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا سوف، میں ان قریب کروں گا۔ تو یہ جو وقت کو آپ نے ٹالنے کی وجہ یہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام فجر سے پہلے سحر کے وقت اپنے بچوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ سحر کے وقت کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر له۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات اس وقت جب رات کا آخر پہر رہتا ہے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ہر رات کے آخر پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور اس نزول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، کوئی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کسی حاجت کا سوال کرنا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی حاجت پوری کر دے۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہتا ہے، اپنے ہر گناہ کی معافی کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سحر کا وقت بڑا عظیم وقت ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اس وقت سے بڑے غافل ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں رمضان میں بھی ہم اس وقت سے بڑے غافل ہیں۔ رات میں بڑی دیر تک ٹھیٹی ٹھاٹا چلتا رہتا ہے اور سحر سے کچھ دیر پہلے سو جاتے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹہ بعد اٹھیں گے اور سحری کریں گے، اور آخر کے 10-15 منٹ میں اٹھتے ہیں، سحری کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سحر کے اس عظیم وقت کو گوا دیتے ہیں۔ تو توبہ و استغفار کے لیے یہ وقت ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ اور ایک اور موقع ہے جہاں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار بھول جاتے ہیں۔ جب آدمی غلطی کرے استغفار کرے معروف ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بندے کو ملے تو ان نعمتوں کے حصول کے وقت، ان نعمتوں کے استعمال کے وقت بھی بندے کو اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر لوگ جب نعمتوں میں ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں تو اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ نعمتوں کے حصول کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری دوبالا ہو جانی چاہیے، پہلے سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی کھلی مثال ہماری دعوتیں ہیں، ہماری شادی بیاہ ہیں، وہ ہمارے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور وہاں ویسے موقع پر جہاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہم شیطانی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورہ نصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اذا جاء
नस्रुल्लाहि वल फतह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की मदद आ गई, मक्का फ़तह हो जाए, वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखोगे कि लोग फ़ौज दर फ़ौज गिरोहों की शक्ल में दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे होंगे। ये नेमत है कि नहीं है? ये खुशी का मौका है कि नहीं है? इस कदर अहम खुशी के मौके पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस कदर अहम मौके पर आप तकब्बुर के शिकार न हो कि आपका दिन गालिब हो चुका है, लोग जौक दर जौक दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आपका किरदार क्या होना चाहिए? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, रब की बड़ाई बयान कीजिए, इसलिए कि इंसानों में किसी नेमत के हासिल करने की कुदरत नहीं है। किसी नेमत के हासिल करने की कुदरत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी जानिब से हमें नेमतों में रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी रहमतों से हमें खुशियाँ अता की हुई हैं। अल्लाह ने कहा खुशियों के मौके पर तुम्हें अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जितनी नेमतें हैं सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से दी हुई, हमारी इसमें कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत और कोई कुदरत नहीं। सिर्फ तस्बीह नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा वस्तगफिर, ऐसे मौके पर आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये हुक्म किसे है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला क्या है कि आपके अगले पिछले तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से माफ़ किए हुए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर गुनाह मुआफ़ है, बावजूद उसके अल्लाह ने आपको इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया हुआ है, तो मुझे और आपको इस्तिग़फ़ार में किस कदर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने मुतअल्लिक़ कहते हैं, वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा व फ़ी रिवायतिन 100 मर्रा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की कसम है, मैं दिन और रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला से 70 मरतबा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और एक रिवायत में 100 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दिन रात में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हम ज़रा अपने अमाल का और अपने दिन रात का जायज़ा लें, अपने दामन को टटोल कर देखें कि मैं और आप दिन में इतने गुनाह होने के बावजूद, अल्लाह की इतनी नाफरमानियों के बावजूद, इतनी सुस्ती और काहली के बावजूद कितनी मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार। तौबा व इस्तिग़फ़ार हम में से हर इंसान का लाज़मी अमल है। इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी न दुनिया में तसव्वुर की जा सकती है और न ही आखिरत में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लका अला मा काना मिन्क वला उबाली। अल्लाह ने कहा, आदम के बेटे, अगर तुम मुझसे दुआ करते रहो, मुझसे उम्मीद लगाते रहो और मग़फ़िरत तलब करते रहो, अला मा काना मिन्क वला उबाली, मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुम्हारा गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। वला उबाली, मैं तुम्हारे उस गुनाह की फ़िक्र नहीं करूँगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, तुमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कितनी नाफरमानी की, चाहे जैसा गुनाह तुम कर लो। शर्त एक है, शर्त क्या है? तुम बस अल्लाह के हुज़ूर अपनी गलती का इकरार करो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, इलाहुल आलमीन मैंने गलती की, एक मरतबा की, तौबा कर ली, लेकिन फिर से गलती हो गई, फिर से तौबा, फिर से गलती हो गई, फिर से तौबा। जब बंदा गलती करता है, अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने कहता है कि मेरा बंदा है जिसने गलती की, जिसने अल्लाह से माफ़ी मांगी। मतलब ये कि ये जानता है कि इसका रब है जो गलती पर इसकी गिरफ्त करता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि मैंने अपने इस बंदे को इस अमल की वजह से माफ़ कर दिया। बंदा फिर तौबा करता है, फिर गलती करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह की जानिब से वही जवाब आता है, बंदे को दूसरी मरतबा भी माफ़ कर दिया जाता है। बंदा तीसरी मरतबा गलती करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला यही कहता है कि मेरा बंदा जानता है इसका एक रब है जो इसकी गलती पर इसकी गिरफ्त कर सकता है, जो तौबा करने पर इसके गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है। गवाह रहना, मैं अपने इस बंदे को मुआफ़ कर रहा हूँ। कितनी दफ़ा होगा? जितने दफ़ा आप माफ़ी मांगते रहेंगे, जब तक गलती के बाद आपको उस गलती का एहसास होता रहेगा,
उस वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को माफ़ करता रहेगा। 1 मरतबा, 10 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, लाख मरतबा, कोई हद नहीं। बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, चाहे जैसा गुनाह हो, चाहे जैसी गलती हो। बस एक शर्त है, शर्त यह कि बंदे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर मुआफ़ी मांगते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। और ये इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से मुआफ़ी मांगना अहले ईमान की सिफ़ात है, ये मुत्तक़ियों की सिफ़त है। और जब बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, मुआफ़ी मांगता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इससे अल्लाह हद दर्जे खुश होता है। हालांकि बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और नाफरमानी करने के बाद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा है, बंदे के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, अल्लाह की तरफ लौट कर आने की वजह से अल्लाह अपने उस बंदे से खुश होता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की खुशी की मिसाल बयान फरमाई, वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए ऊंची ऊंची मिसालें हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात समझाने के लिए मिसाल दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह कैसे खुश होता है कि तुम में से कोई इंसान सहरा में निकला हुआ है, उसके पास ऊँट है, ऊँट पर उसके सफ़र का सामान है, वो आंख बंद करने के लिए, सुस्ताने के लिए लेटता है। जब आंख खुलती है क्या देखता है कि उसके करीब ना तो ऊँट है ना उसके सफ़र का सामान, यानी इस सहरा में मरने के अलावा उसके सामने कोई और चारा और रास्ता नहीं है। वो दोबारा आंख बंद कर अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए लेट जाता है। लेकिन अचानक जब आंख खोलता है क्या देखता है कि उसके सामने उसका ऊँट साजो सामान के साथ तैयार वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे पहले खड़ा हुआ था। बंदा कितना खुश होता है कि उसे दूसरी ज़िंदगी मिल गई। उस खुशी के मौके पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। हालांकि कलमात कुफरियाँ हैं, लेकिन उसके खुशी का आलम यह है कि वो अपनी ज़ुबान से क्या कलमात निकाल रहा है उसे उसका भी एहसास नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ये बंदा अपने ऊँट को पाकर जितना खुश होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे की मग़फ़िरत से, अपने बंदे की तौबा से, अपने बंदे के रुजू होने से इससे भी कहीं ज़्यादा खुश होता है, कहीं ज़्यादा खुश। बल्कि एक हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहलवाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम व लजाअ बिकुम बिक़ौमिन युज़निबून फ़यस्तग़फ़िरून अल्लाह फ़यग़फ़िरु लहुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम गुनाह न करो और गुनाह के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा न करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ज़मीन पर ख़त्म कर देगा, तुमसे रहने का हक़ छीन लेगा। वलजाअ बिक़ौमिन युज़निबून, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी जगह ऐसी कौम लाएगा जिनसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएंगी, लेकिन उन गलतियों के बाद उस कौम का क्या मामला होगा, फ़यस्तग़फ़िरून अल्लाह, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों पर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। फ़यग़फ़िरु लहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके इस्तिग़फ़ार करने की वजह से उन्हें माफ़ करेगा। तो इस्तिग़फ़ार ये बड़ी फ़जीलतों वाला अमल है, मोमिनीन की अहम सिफ़त है, मुत्तक़ियों का ख़ासा है। हम में से हर इंसान को इस्तिग़फ़ार लाजिम पकड़ने की ज़रूरत है। जिस कदर मुमकिन हो सके हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर इस्तिग़फ़ार करते रहे। बाकी जो बातें होंगी इंशाअल्लाह फिर आइंदा दुरूस में बयान की जाएंगी। दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही गई हैं समझते हुए उस पर अमल करने वाला बना। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।